Hi friends, in today's session we'll start with how to solve the redox balancing reaction कैसे करेंगे. There are two methods. First method is half reaction method and second method is oxidation number method. The first we start with the half reaction method. So before we go to this half reaction method, hope you are clear with how to find out the oxidation number that we already discussed in last session. So once again, if you are not clear, then first please go through that last session and clear your oxidation number, how to find out the oxidation number. So here in case you are given a statement like this, there is one redox reaction available, that is Cr2O7 minus 2 plus C2H4O gives C2H4O2 plus Cr plus 3 in bracket acidic. Means there are two types of condition, either it is an acidic condition, either it is in basic condition. If your redox is in an acidic condition, then during this reaction you have to add H plus and neutralize with H2O. Once again, if your reaction condition is acidic, then you have to add H plus and neutralize with H2O. Then I will teach you where you have to add H plus and H2O. Now this complete reaction is total 6 steps, and each and every step having various sub steps also. So what is your first step? First step is find out the oxidation number of reactant and product. See, अगर आपको confidence नहीं होगा oxidation number find out करने में, तो first step में ही आप फंस जाओगे. That's why I emphasize once again कि जिन लोगों को अभी भी oxidation number find out करना नहीं आ रहा है या फिर clear नहीं है, तो सबसे पहले last session clear कर लीजिए, then you go ahead. So you are given a statement क्या था वो फिर से एक बार लिख लीजिए. Cr2O7 minus 2 plus C2H4O gives C2H4O2 plus Cr plus 3. So Cr का oxidation plus 6 होगा, oxygen is minus 2. अब Cr plus 6 कैसे आया? तो this is first, so that's why I am showing you कैसे plus 6 आया. Next time से आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है. Cr2O7 minus 2 जिसका फाइंड आउट करना है that is 2x. Why 2x? Because Cr2 है. Plus oxygen 7 into minus 2 is equal to minus 2. So 2x is equal to plus 12, x is equal to plus 6. So that's why Cr having plus 6. Fine. Now next we move on to this कार्बन का -1 कैसे है, यहाँ पे कार्बन का 0 कैसे है. ये तो ढूंढने की जरूरत नहीं है because atom is in an ionic state having the same oxidation state. Fine. तो plus 3 है तो directly plus 3 हो जाएगा. Now we'll discuss about these two oxidation state कैसे आया. So C2H4O कार्बन का ढूंढना है, that is 2x plus 4 into H plus 1 into 2 minus is equal to 0. So 2x plus 2 is equal to 0. सर यहाँ पे आपने 0 लिया और ऊपर आपने -2 लिया था. क्यों? क्योंकि ये चार्ज में है -2. दिस इज न्यूट्रल स्पीशीज. न्यूट्रल स्पीशीज का सम ऑलवेज 0 होता है. So 2x plus 2 is equal to 0, x is equal to -1. तो this C2H4O जो है उसका -1 हो जाएगा and C2H4O2 2x plus 4 minus 4 is equal to 0, x is equal to 0. तो अब देखिए राइट हैंड साइड पे C2H4O is -1 and C2H4O2 is 0. So this is plus 6 -1 0 and plus 3. अब यहां से आप देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. Cr plus 6 से plus 3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, दैट इज रिडक्शन. डेफिनेशन ही हमने पढ़ा था. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, -1 से 0 हो रहा है, so that's why it is oxidation. The definition of oxidation, number increases, -1 से 0, reduction plus 6 से -3 decreases. So यहाँ से step 2 start होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. हाफ रिएक्शन का मतलब कौन सी स्पीशीज रिडक्शन करेगा, कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडेशन करेगा. तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमने बताया C2H4O से लेके C2H4O2 वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन हो गया. एंड Cr2O7 minus 2 से Cr plus 3 ये जो दो है वो रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका रिडक्शन का हाफ. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मिलके ही पूरा रेडॉक्स बनता है. सो ये दोनों आपके हाफ रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. Now we have to solve each and every term. अब step 3 and step 4 is really very important.
स्टेप 3 है फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है सबसे पहले, ऐसे ही आपको रिडक्शन के बैलेंस हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। C2H4O gives C2H4O2। नाउ फर्स्ट स्टेप नंबर 3 के अंदर का सब फर्स्ट स्टेप, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मीन्स द स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उसको बैलेंस कीजिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, -1 से 0। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कार्बन की नंबर सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा? एज इट इज रहेगा, नो चेंज। C2H4O gives C2H4O2। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसको बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 2, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन डिफरेंस जितना आया उतना इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। अब एक चीज याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऐड टू दिस प्रोडक्ट साइड, and in case of reduction electron always add into this reactant side। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे ऐड होंगे, रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ऐड होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे कैसे पता चलेगा? तो C2H4O gives C2H4O2, लेफ्ट टू राइट जाते रहते ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिफरेंस आया? -1 से 0, मीन्स 1 यूनिट का। That is for 1 carbon। Once again I repeat my words, यहाँ पे C2 है, हमने फाइंड आउट किया था XX माने सिंगल एक कार्बन के लिए। अगर जो एक कार्बन होता तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना होता? -1 से 0 मीन्स 1। बट हियर इनके C2 है, 2 कार्बन है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 2। So that's why we have to add 2 electron in product side। सर ये यहाँ पे क्यों ऐड किए, यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किए? बिकॉज वी आर सॉल्विंग हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड ऐड होंगे, रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ऐड होंगे। तो स्टेप नंबर 2 क्लियर है। C2H4O ये C2H4O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टेप नंबर 3, बैलेंस चार्ज बाय एडिशन ऑफ H+ इन अ रिएक्शन बिकॉज द सोल्यूशन इज एसिडिक। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको H+ एंड H2 ऐड करना है, तो दिस इज अ स्टेप। अब ये रिएक्शन पूरा एसिडिक कंडीशन में है, तो आपको यहाँ पे H+ ऐड करना है। कितना H+ ऐड करना है? तो बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H+, जितना चार्ज है उतना H+ ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको? देयर इज नो चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट इज 0। राइट साइड पे कितना चार्ज है? तो -2। सो हियर इन केस यहाँ पे चार्ज है 0, यहाँ पे चार्ज है 2। ये कैसे? प्रीवियस रिएक्शन जो था वहां से आपने देखा, हियर इन केस देयर इज अ चार्ज 0, हियर इन केस देयर इज अ 2 चार्ज, तो डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे -2 है। सो अब हमें H+ ऐड करने हैं, तो कहाँ पे H+ ऐड करूंगा? यहाँ पे या यहाँ पे? इट्स लुक लाइक अ बैलेंस्ड हियर। अगर आप रोड साइड पे नॉर्मल पैन बैलेंस पे 1 kg टोमेटो ले रहे हो, अगर जहां पे बार रखा हुआ है वो साइड डाउन साइड है और टोमेटो रखे हुए बार अप साइड है, तो आप कहां पे ऐड करोगे? टोमेटो साइड। अब टोमेटो वाली साइड नीचे की तरफ है और जहां पे पैन रखा हुआ है वो ऊपर की तरफ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइदर बार ऐड करना पड़ेगा, आइदर टोमेटो निकालना पड़ेगा। तो हियर इन केस चार्ज कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे कितना है? 0। तो 2H+ कहाँ पे ऐड करेंगे? यहीं पे ऐड करेंगे। क्यों सर यहीं पे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किया? जो अगर 2H+ हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज कितना हो जाएगा? 2+। राइट साइड पे चार्ज कितना होगा? -2। तो ये बैलेंस है? नहीं है। तो इसीलिए जो अगर मैं यहीं पे 2H+ ऐड कर देता हूं, तो यहीं पे जो मैं 2H+ ऐड करूंगा तो इसका -2 और इसका +2
टोटल हो गया 0, राइट साइड पे ऑलरेडी 0 है तो 0 0 बैलेंस्ड हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड H प्लस इन राइट हैंड साइड, नॉट लेफ्ट साइड. देखिए C2H4O gives C2H4O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस. वंस अगेन 2H प्लस क्यों यहाँ पे ऐड किया? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है -2, यहाँ पे चार्ज कितना है 0. अब जैसे ही आप यहाँ पे 2H प्लस डाल देते हैं तो ये बन जाएगा -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी 0, सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड 2H प्लस ओवर हियर. नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ H एंड O बाय एडिशन ऑफ H2O. सो सबसे पहले H प्लस ऐड किया, अब H2O से न्यूट्रलाइज करेंगे. न्यूट्रलाइज मीन्स बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो काउंट कीजिए. यहाँ पे है 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. राइट हैंड साइड पे क्या है, 4 हाइड्रोजन और 2 ये डाले तो ये बन गए 6 हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन. तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. तो जो अगर मैं यहाँ पे एक H2O डाल दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक H2O डाला तो ये क्या बन गया, 4 प्लस 2 6, 1 और 1 2, तो ये बन गया बैलेंस. सो दैट्स व्हाई C2H4O प्लस H2O gives C2H4O2 plus 2 electron plus 2H plus. This is your final equation number 1. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो चुका है. So this is all about your one part is balanced. लास्ट स्टेप फिर से H2O कैसे ऐड किया आपने, जहां पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को काउंट कीजिए. अब ये बैलेंस देखिए, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 प्लस 2 6, हाइड्रोजन 4 प्लस 2 6, ऑक्सीजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 1 और 1 2. ईच एंड एवरी एटम एज वेल एज चार्ज सब बैलेंस हो चुका है. दिस इज कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस में ऑक्सीडेशन बैलेंस हो चुका है. नाउ वी मूव ऑन टू दिस रिडक्शन बैलेंस. रिडक्शन बैलेंस के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हेड पॉइंट सेम ही लेने वाले हैं. अब आपको रिडक्शन पार्ट को सॉल्व करना है. तो रिडक्शन पार्ट हाफ रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन हाफ पार्ट है Cr2O7 - 2 gives Cr plus 3. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 Cr है, राइट साइड पे एक ही Cr है. तो सबसे पहले क्या पूछा है, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया कोएफिशिएंट. तो ये सबसे पहले एटम बैलेंस हो गया. सेकेंड स्टेप, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर. फिर से ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ चले जाइए. Cr2O7 Cr plus 3. लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, +6. राइट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, +3. +6 to +3 डिफरेंस कितना, 3. बट वो एक Cr के लिए, यहाँ पे Cr2 है तो डिफरेंस इज 6 इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करना है, मैंने पहले ही बताया, ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड, रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड. तो अब हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ऐड करेंगे. सर क्यों यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि हम रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस सॉल्व कर रहे हैं इसलिए. अब चार्ज देख लिए कितना है, क्यों, क्योंकि आपको H प्लस ऐड करना है. देखिए अब इसका चार्ज कितना है, ये है -2, इसका चार्ज है -6 और इसका चार्ज है +6. 3 2 +6. फाइन. तो यहाँ पे कितना हुआ, -2 एंड -6 टोटल हो गया -8, यहाँ पे हो गया +6. अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, -8 + 6 डिफरेंस इज 2. अरे भाई ये -8 है, ये +6 है. मान लीजिए कि आप स्टेप्स पे हो, आप -8 स्टेप पे हो, आपको +6 पे जाना है, तो टोटल कितने स्टेप होंगे, 14. Once again, do not, this is not a simple maths कि लेफ्ट हैंड साइड -8, यहाँ पे +6, -8 + 6 is 2. ऐसा नहीं करना है. यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +6 है. यहाँ पे मैं कितना डालूंगा तो +6 होगा, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 14. तो 14 - 8 क्या हो जाएगा, 6. तब जाके ये बैलेंस होगा. So that's why I add 14H plus on left hand side. Cr2O7 - 2 plus 6 electron plus 14H plus gives 2 Cr plus 3.
पहले पढ़ रहा है बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय H2O। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है काउंट कीजिए। यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे है 14 हाइड्रोजन। राइट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल जो अगर मैं यहाँ पे 7H2O डाल देता हूँ तो 7 2 जा 14 H प्लस हो गए मेरे और 7 1 जा ऑक्सीजन हो गया, तो ये बैलेंस हो गया मेरा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, देखो Cr2O7 माइनस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे भी सारे के सारे एटम बैलेंस होंगे, 2Cr 7 ऑक्सीजन 14H प्लस 14H प्लस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टू बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब रेडॉक्स सॉल्व करने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बरोबर है। अब ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखिए यहाँ पे थे 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसका था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। सिंपल एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अबाउ इक्वेशन नंबर 1 को जो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 कैन बी कैंसल आउट। तो लाइकवाइज ऑक्सीडेशन जो हाफ रिएक्शन था उसको पूरा मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है एंड रिडक्शन रिएक्शन को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। मींस 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो अब ये हो गए इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ रिएक्शन। अब दोनों में इक्वल हो गए, अब मैं ये बैलेंस कर सकता हूं या कैंसिल कर सकता हूं। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, यहाँ पे 14H प्लस है, यहाँ से 6 है, 6 में से 14 चले जाएंगे, 8 बच जाएंगे। 3H2O यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो 4 बच जाएंगे। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन मैंने कैसे लिखा, लेफ्ट साइड वाली सारी प्रोडक्ट एक साइड, राइट साइड वाली एक साइड। तो 3C2H4O Cr2O7, अब यहाँ पे ये तो चला जाएगा इसके साथ, बचा क्या, 14 यहाँ पे जाता है 6 से तो 8H प्लस, देन 3C2H4O2 प्लस 2Cr प्लस 3 यहाँ से माइनस हो गए 4H2O। सो दिस इज माय नेट बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे ये लिखने पे आपको 3 मार्क मिलेंगे, कंप्लीट द रेडॉक्स रिएक्शन और बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन पे। So you have to follow this 6 step to get this answer. Once again, a quick recap of this. First step is really very important. You have to find out the oxidation number of reactant and product. सबसे पहले oxidation number find out कर लीजिए, उससे आपको क्या पता चल जाएगा the species undergoes oxidation and कौन सी species reduction करेगी। सर कैसे ढूंढेंगे, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन हाफ हो गया। C2 एंड C2 -1 से 0 हो रहा है, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे 2 पार्ट कर लिए, 2 पार्ट करने के बाद यू हैव टू बैलेंस दिस इंडिविजुअली। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को पूरा बैलेंस करो, देन रिडक्शन हाफ बैलेंस को पूरा बैलेंस करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके फाइनलाइज सारी चीज कैंसिल कर लो एंड व्हाट इज लेफ्ट दैट इज ऑल अबाउट योर नेट बैलेंस रिएक्शन। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम ऐसा ही 1 या 2 और एसिडिक कंडीशन वाले रिएक्शंस देखने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन विथ हाफ रिएक्शन मेथड।